Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقانہ الحمید وقال الحق قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. 9 محرم 1445 ہجری. یہ وہ شب ہے مومنات جو منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے. آج کی وہ شب ہے جب قیام حسینی میں تمام مائیں اپنے بچوں کو یہ بتا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، کل جب حسین پر وقت پڑ جائے تو سب سے پہلے تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو. ایک ماں ہے جو 6 مہینے کے علی اصغر کو بتا رہی ہے کہ اصغر تمہارا بھی سن نہیں ہے جنگ کا، لیکن دیکھو کل حسین کے سب سے پہلے تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو. ایک بیوہ ماں ہے جو کہہ رہی ہے قاسم دیکھو کل مجھے اپنی دادی کے سامنے شرمندہ نہ کرانا. ادھر فوج یزیدی میں تمام لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل جب 10 محرم کا سورج نمودار ہوگا تو حسین کے اوپر چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر کے حسین کو قتل کر دیں. تمام لوگ نیزوں کو تیز کر رہے ہیں، تلواروں کو تیز کر رہے ہیں. یہ وہ رات ہے جب تمام اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ وہ رات ہے جب امام کی تمام جانثاروں کا ذکر کیا جاتا ہے. امام کا ایک ساتھی اور ہے جو امام کی سواری ہے. آج پوری دنیا میں جلوس نکالے جا رہے ہیں. جہاں جہاں جلوس نکالا جاتا ہے حسین کی سواری کے ساتھ ساتھ نکالی جاتی ہے. ایسی کیا بات ہے حسین کی سواری میں کہ حسین کی سواری نکالی جاتی ہے جبکہ واقعہ کربلا میں سب کی سواریاں موجود تھیں. مولا عباس کا مشل نامی گھوڑا موجود تھا، جناب علی اکبر کی عقاب نامی سواری موجود تھی. پھر کیا وجہ ہے کہ زلجنے کو ہر جگہ نکالا جاتا ہے؟ یہ مرتجس نامی زلجنا جو ہے یہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ تو یہ اس لیے نکالا جاتا ہے کہ یہ امام حسین کا آخری گواہ، قتل امام حسین کا آخری گواہ ہے مرتجس، کہ جب حسین کے پاس کوئی نہیں بچا تھا تو یہ واحد تھا جو حسین کی نصرت کر رہا تھا، جو حسین کو بچا رہا تھا. یہ واحد تھا جس نے امام حسین کی شہادت کی خبر بیویوں کے خیمے میں نقل کی. جب حسین شہید ہو گئے تو دستار امامت اور ذوالفقار حیدری کو امام کے خیمے میں یہی لے کر آیا تھا اور چوتھے امام تک باحفاظت انہیں پہنچایا. کیسے ملا ہے حسین کو یہ مرتجس؟ جب مولا یمن کے بادشاہ کے پاس گئے اور واپس آنے لگے تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ مولا میری خواہش ہے کہ جاتے وقت آپ کو کچھ نذرانے پیش کروں، لیکن مولا جس طرف نگاہ کرتا ہوں ہر چیز آپ کے سامنے حقیر معلوم ہوتی ہے. مولا مجھے پتہ چلا ہے بنی ہاشم کو سواریوں میں بڑی دلچسپی ہے. مولا میرے استبل میں ایک گھوڑی موجود ہے، مولا اس میں بڑی عجیب خصوصیات ہیں. علی نے فرمایا کیا خصوصیات ہیں؟ کہا مولا یہ برق رفتاری سے میدان میں حملہ کرتی ہے، چاروں طرف سے دوڑ دوڑ کے حملہ کرتی ہے. اور مولا دوسری خصوصیات یہ ہے کہ اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی. جب کوئی سوار گرنے لگتا ہے تو چاروں ٹانگوں کو پھیلا دیتی ہے تاکہ سوار آسانی سے اتر جائے. علی نے کہا میں دیکھنا چاہوں گا. اس نے مجلی نامی گھوڑی کو دربار میں بلایا. اب جو یہ چلتی بھی آ رہی تھی پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی. علی فرماتے اس کا کوئی بچہ بھی ہے؟ کہا مولا ہاں اس کا ایک بچہ بھی ہے، مگر آپ کو کیسے پتا؟ امام فرماتے ماں کی فطرت ہوتی ہے، اگر بچہ پیچھے رہ جائے تو پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہے. اس کا پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھنا بتاتا ہے استقبال میں کوئی بچہ بھی ہے. کہا مولا اس کا ایک بچہ ہے. کہا اس کو ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ کہا مولا کسی کام کا مولا اس کو نے آج تک کسی کو اپنی پشت پہ سوار ہونے نہیں دیا. جب صبح ہم استقبال کا دروازہ کھولتے تو مولا جنگل اور صحراؤں میں نکل جاتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے. لیکن مولا جب عصر کا وقت آتا ہے آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی ڈھال مارتا ہے، ایسی نکالتا ہے، ایسا لگتا ہے مولا کسی تکلیف میں ہے. سننے والوں کے دل دہل جاتے. علی فرماتے کہاں ہے؟ کہاں صحرا میں؟ مولا بلوا دوں. علی فرماتے
पहुंचे सहरा के पास, देखा ये जमीन पे मुंह को लौट रहा है। अली ने मुर्तजिस को आवाज दी, मुर्तजिस दौड़ता हुआ इमाम के कदमों में आया। अली ने बाहें डाली है मुर्तजिस के गले में और इतना गिरिया किया और कार में कहा है मुर्तजिस जिसका इंतजार था वो आ गया। अली वापस मदीने आ गए और आगे अली को तहाई तकसीम कर। हुसैन ने कहा बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लाए। कहा हुसैन तुम्हारे लिए सवारी लाए, मदीने के दरवाजे पे खड़ी है। इससे पहले हुसैन ने कभी सवारी नहीं की है। अब हुसैन दौड़े मदीने के दरवाजे की तरफ, देखा मुर्तजिस खड़ा है। मुर्तजिस ने हुसैन को आते हुए देखा, दौड़ता हुआ इमाम के कदमों में आया। इमाम ने मुर्तजिस के गले में बाहें डाली। एक दफ़ा हुसैन ने गिरिया बुलंद किया। बनी हाशिम ने पूछा हुसैन इस गिरिये की वजह? इमाम कहते हैं इसकी पुश्त पे से मुझे अपने लहू की खुशबू आ रही है। हुसैन घोड़े पे सवार हुए। जब पहली दफ़ा हुसैन ने सवारी की ना तो मदीने की गलियों में लोगों ने छतों में बैठ के हुसैन की सवारी को देखा है। अब वो दिन है और आशूर का दिन, हुसैन और मुर्तजिस अलग नहीं होते। कोई ऐसा दिन नहीं है हुसैन का जो मुर्तजिस के बगैर गुजरता है। बस हुसैन है और मुर्तजिस है। अब इसको जुलझला क्यों कहा जाता है? जब हुसैन घोड़े से जमीन पे उतरे हैं ना और चारों तरफ से जब तीर की बारिशें हो रही थी तो ये चारों तरफ दौड़ के तमाम तीरों को अपने जिस्म पे ले रहा था। जुलझला कहते हैं पर वाली चीज को। अब दोनों जिस्म पे इतने तीर लगे कि दूर से देखने वालों को ये लगता था कि जैसे दो पड़ लगे हो। उस दिन जैसे जुलझला कहना शुरू किया ये है हुसैन के कत्ले हुसैन का आखिरी गवाह। ये वो सवारी है जिसे जनाब सैयदा ने अपनी चादर में दूध पिलाया। ये है मुर्तजिस। बस हुसैन आ गए जनाब अली अकबर का जनाजा उठाकर अली असगर को दफना के। बस एक बार हुसैन आया है बहन के खेमे के पास, आकर आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाह ज़ैनब ने आवाज को सुना। इस आलम में गुर्बत में किसी साहिल ने मेरा दरवाजा पहचान लिया। अम्मा मदीने में जब मेरी माँ फातिमा के दरवाजे में कोई साहिल आता था इसी आयत को पढ़ता था। अम्मा मैं आलम में गुर्बत में हूँ तो क्या हुआ? अम्मा हूँ तो अली की बेटी, आज मैं जरूर सवाली की सदा को पूरा करूंगी। अम्मा देखो सवाली क्या सवाल करता है। फिजा गई है दर खैमा पर, वापस आई तो सर की चादर गिर गई थी। कहा ज़ैनब सवाली का नाम हुसैन है, सवाल मौत का है। ज़ैनब मेरा भाई मौत की इजाजत लेने आ गया। ज़ैनब फातिमा का लाल मरने की तैयारी कर आ गया। बीवी फरमाती है हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा प्यासा हुसैन, हाय मेरे जनाजे उठाने वाला हुसैन, मैं अकबर की पर्ची निकालने वाला हुसैन, मैं गाजी के जख्मों को सताया हुआ हुसैन, मैं हजरत को दफनाने वाला हुसैन, मैं मेरा मजलूम हुसैन, अंदर आ जा। अब हुसैन अंदर तशरीफ लाए हैं। दोनों बहन भाइयों में बातें शुरू हुई। बहन ने माँ की वसीयत को पूरा किया, इमाम के गले पे बोसे लेने शुरू करे। उधर बहन ने भाई ने वसीयत को पूरा किया, बहन के शानों को चूमना शुरू किया। हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब कोई पुराना कुर्ता ला कर दो। बहन कुर्ता लेकर आई तो इमाम हुसैन ने कुर्ते को पहना, गिरेबान को मजीद चाक किया। हुसैन जानते हैं फौजी अशिया मेरे मरने के बाद मेरे लिबास को भी लूटेंगे। और हुसैन ने रुखसत तलब की, कोई बीवी जाने नहीं देती। बड़ी मुश्किल रुखसत है, मक्तल की दो रुखसत है। एक जनाब अली अकबर को कोई जाने नहीं देता था, एक हुसैन को कोई जाने नहीं देता था। बीवियाँ कहा करती है वाह हुसैना, कोई बीवी कहती है वाह अलिया, कोई कहती है वाह हसना। शाम वाली बीवी कहती है वाह हिजाबा, हाय ओ मेरी चादर, हाय मेरा पर्दा। बस एक दफा इमाम ने अपने जख्मी हाथों को माथे पे रखा और आवाज दी अस्सलामु अलैका या ज़ैनब कुलसूम या रुकैया या फिज़ा या सकीना अलैकुम मिन्नी सलाम। हुसैन का आखिरी सलाम हो। बस हुसैन आए घोड़े के पास। अब हुसैन ने घोड़े पे सवार होना चाहा तो एक बार हुसैन को अपनी गुर्बत का एहसास हुआ। यमन शुमालन, एक बार हुसैन ने यमन की तरफ देखा, एक बार हुसैन ने दाएं देखा, एक बार बाएं देखा। हुसैन फरमाते आज हुसैन को सवार करने वाला कोई नहीं। ए अली अकबर आओ, ए अब्बास आओ। हुसैन को अकेले सवार होना नहीं आता था। हुसैन आज तक अकेले सवार नहीं हुआ, बस नागा निजाम में था
साथ आया, चल अली का बेटा सवार हो, चल अली का बेटा सवार हो, आज बहन सवार कराएगी। हुसैन बस घोड़े पे सवार हुए, एड़ लगाई, अब हुसैन मक्तल की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा। हुसैन फरमाते मुर्तजिज ये मेरा आखिरी सफर है, बस मुर्तजिज आगे बढ़। मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा। इमाम फरमाते मुर्तजिज इस आलम गुर्बत में तूने भी हमारा साथ छोड़ दिया। हैवान ने अपने सर को नीचे झुकाया, देखा 4 साल की बच्ची की मौत हुई है। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, कहा सकीना बाबा को जाने दो। वो कहा नहीं बाबा, सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं आया। सकीना का कोई बाकी नहीं बचा। हुसैन कहते हैं अगर आज हुसैन नहीं गया तो नाना का दिन नहीं बचेगा। हुसैन हर तरीके से बेटी को समझाते। जब हुसैन ने देख लिया बेटी नहीं समझ रही तो एक बार दुआ की, ऐ पालने वाले सकीना पे नींद को तारी कर। बस मासूमा की आंखें बंद होना शुरू हुई। हुसैन ने बेटी को बहन के हाथ में दिया। हुसैन घोड़े पे सवार, अब हुसैन ने एड़ लगाई घोड़े को। अब मक्तल की तरफ हुसैन आए हैं। अब हुसैन को पता है पीछे रोकने वाला कोई नहीं है। बहन से इजाजत ले चुके, बेटी से विदा ले चुके। अब हुसैन आए मक्तल की तरफ और आकर हुसैन ने कहा, ए नाना की उम्मत, मैं तुम पे तलवार उठाना नहीं चाहता। क्यों मेरे खून से प्यासे हो? देखो हुसैन भाइयों के कातिल से लड़ना नहीं चाहता। देखो हुसैन भतीजों के कातिल से लड़ना नहीं चाहता। देखो हुसैन बेटों के कातिल से लड़ना नहीं चाहता। मैं अभी भी तुम्हें मना कर रहा हूँ, मेरे कत्ल से बाज आ जाओ। 9 लाख के लश्कर से आवाज आई, बेबुग़्ज़ अली, हम तेरे बाप से बुग़्ज़ रखते हैं। बस हुसैन ने कहा अब मुझ पर जंग वाजिब हो गई। इमाम ने नयाम में से तलवार को निकाला। अब जो हुसैन ने जंग करना शुरू की तो यहाँ की फौजें वहाँ हुई, वहाँ की फौजें यहाँ हुई। अब हुसैन लड़ते जाते हैं। उधर 70 कदम से बहन ने भाई का जो ये मंजर देखा तो कहा मरहबा या हुसैन, मरहबा या हुसैन। अब हुसैन के चेहरे पे कोई मजलूमियत नजर नहीं आती। हुसैन के चेहरे पे अली वाला जलाल आया। कूफे वालों को कूफा याद आया, शाम वालों को शाम याद आया। अब जो जंग शुरू की है हुसैन ने तो कहते हैं आओ उसकी जंग देखो जिसका 18 साल का जवान मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका भाई मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका 6 महीने का असगर मारा गया। अब हुसैन जंग करते जाते हैं। क्या आतिफ की निदाई, अकबर न जी उठेंगे जो परसों भगा करो, अकबर न जी उठेंगे जो परसों भगा करो। बस एक हुसैन वादा तिफली अदा करो। बस हुसैन ने तलवार को नयाम में रखा। फौजी अशकिया समझ गई अब हुसैन जंग नहीं लड़ेंगे। अब जिसके हाथ में जो आया उसने वो मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा। अब हुसैन जख्मों से चूर हो गए। अब हुसैन से घोड़े पे संभला ना गया। एक दफा मुर्तजिज से कहा, मुर्तजिज मुझे कहीं नशे को उतार दे। अब मुर्तजिज ने दौड़ना शुरू किया। एक बार मुर्तजिज को लगा मेरी जीन खाली हो गई। अब मुर्तजिज वापस पलट कर आया, देखा हुसैन जमीन पे गिरे हैं। कहता है एक बार बस इतना बता दे मेरी गलती से गिरे हैं या अपनी मर्जी से गिरे हैं। मुर्तजिज कहता है ना, हुसैन फरमाते मुर्तजिज ना तेरी गलती से ना अपनी मर्जी से, मेरी माँ फातिमा आई है। मुर्तजिज आंखों को नीचे कर, मेरी माँ दामन फैला कर कहती है हुसैन नीचे आ जाओ, कब तक जंग लड़ेगा। हुसैन नीचे आ जाओ, माँ बुला रही है। अब हुसैन ने एक बार कहा, मुर्तजिज कहता बोला मेरे लिए क्या हुक्म है। हुसैन फरमाते हैं मुर्तजिज मैं तेरे ऊपर सवार नहीं हो सकता। मुर्तजिज गर्दन को नीचे कर, मैं तेरे गले में पाए डालता हूँ। मुर्तजिज बस आखिरी बार, मुर्तजिज आखिरी बार मुझे अकबर के लाशे मिले। मुर्तजिज मुझे बस आखिरी बार अकबर का लाशा दिखा दी। हुसैन आखिरी बार अकबर को देखना चाहते हैं। बड़ी जल्दी की है मुसलमानों ने, बड़ी जल्दी की है हुसैन को मारने में। बोला अकबर के बाद हुसैन ने कितना जिए, बस थोड़ा सा साथ और दीजिएगा। आज शहादत है इमाम हुसैन की, बस हुसैन की ज़रबे पढ़ना चाहूँगी, थोड़ा सा साथ दीजिए। आज तक हमने ज़रबों में पढ़ा कि हुसैन को 13 ज़रबों से कत्ल किया। एक कातिल है हुसैन का जिसने हुसैन को 13 ज़रबों से मारा। एक कातिल नहीं है हुसैन का, इन्होंने आराम आराम से मोहम्मद के बेटे को कत्ल किया है। एक एक कातिल आता रहा, इन्हें कोई डर नहीं था। अब्बास लहरे बरात सो रहे
रहे थे, कोई डर नहीं था इन्हें। एक एक करके ये आते रहे, हुसैन को कत्ल करते रहे। आज वो रिवायत पढ़ूंगी जो 12वें इमाम ने देखी और 12वें इमाम ने लिखी है। जब हुसैन घोड़े से जमीन पर आए तो हुसैन का पहला कातिल सनान बिन अनस हुसैन के सीने पे सवार हुआ। इसने इमाम की हथेली की हड्डी पर अपने नेज़े से वार किया, इमाम के दिल की रगों को काटा। मेरा 12वां इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता है, अस्सलामु अला मक़तूल वतीन, सलाम हो मेरा उस इमाम पर जिसके दिल की रगों को काटा गया। फिर हकीम इब्न तुफैल आया, इसने इमाम के बालों में हाथ डाला, मेरे इमाम को तमाचा मारा। फिर तीसरा कातिल आया, खड़े होकर कहता है, हुसैन की जिस्म को जगह ही नहीं बची, मैं कहाँ वार करूं। इसने तीर को लगाया, इमाम के माथे को मारा। अब चौथा कातिल आया है, बस आखिरी कातिल पढ़ूंगी हुसैन का। जो लोग करबला जा चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि रोज़ा इमाम हुसैन, उससे 1 किलोमीटर पहले एक मकाम है, उसे मकाम साहिबुज़्ज़मा कहते हैं। जब उन्होंने से पूछा इसे मकाम साहिबुज़्ज़मा क्यों कहा जाता है, तो पता चला कि यहाँ 12वें इमाम आते हैं और मेरा 12वां इमाम यहाँ रात में आता है, 2 रकअत नमाज पढ़ता है, इमाम हुसैन के कातिल पर लानत भेजता हुआ मौला तक जाता है। इसलिए मोमिनों पर वाजिब है कि जब भी करबला जाए तो 2 रकअत नमाज मकाम साहिबुज़्ज़मा तक पढ़े और वहाँ से लानत भेजते हुए जाए। ये मकाम साहिबुज़्ज़मा क्या है, तो पता चला ये वो मकाम है जहाँ हुसैन घोड़े से जमीन पे। और रोज़ा इमाम हुसैन क्या है, कहा यहाँ शिवर ने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया था। दोनों मकामात में जो आज फासला है वो 1 किलोमीटर का फासला है। वही जिसको कोई दुआ कबूल करानी हो हुसैन के रोज़े पर, तो वो उस मकाम से उस कातिल पर लानत भेजता हुआ इमाम हुसैन के मकाम पर जाए तो फौरन दुआ कबूल हो जाती है। आखिर कौन है ये कातिल? सालिम बिन वहाब कातिल का नाम है। जब हुसैन घोड़े से जमीन पे गिर गए, इसने दोनों हाथों को हुसैन के बालों में डाला, वहाँ से घसीटता हुआ